Hello and welcome to my channel. My name is Ravi Baseen and I'm an IELTS tutor. Today in this video lecture, I'll be discussing some of the most common spelling mistakes which people make while writing English. And it is not only non-native users who make these mistakes, sometimes even native users make these mistakes. This lesson is again in the form of a test. But I'll not give you options like in the last one. This time I'll speak each word 2 or 3 times and you'll have to write the correct spelling of that word on a sheet of paper. And after a few seconds, the word will appear on the screen. Give yourself 1 mark for every word that you write correctly and a 0 for every mistake that you make, so that you can calculate your score out of 30 at the end of this test. Don't worry, I'll give you enough time to figure out the correct spelling of each word and I'll try to speak clearly, and I'll also repeat every word sufficient number of times. Here we go. The first word is questionnaire. Questionnaire. It's a list of questions जो सर्वे में पूछे जाते हैं लोगों को. Questionnaire. 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 Okay, here's the word. Did you get the spelling right? Remember, there's a double N in questionnaire. The meaning of this word is a list of questions that several people are asked in a survey. For example, it took me 20 minutes to fill in the questionnaire. अगला word है millionaire. 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 लखपति. Millionaire. Okay, here's the word for you. याद रखें कि millionaire में n सिंगल ही होता है. क्वेश्चनियर में n डबल हो जाता है, लेकिन millionaire में n सिंगल रहता है. Millionaire का मतलब है person who has assets worth $1 million or pounds. 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है. मतलब 1 के बाद 6 zeros अगर आप लगा लें तो हिंदी में कह सकते हैं 10 लाख. और millionaire का मतलब है लखपति. फॉर एग्जाम्पल, he can buy anything he wants. His father is a millionaire. अगला वर्ड है entrepreneur. इसका मतलब होता है बिजनेसमैन. entrepreneur. entrepreneur. और इस वर्ड को लिखने का सही तरीका है ये. Remember the TRE and PRE in entrepreneur. This word comes from French, so it has a tricky pronunciation. Entrepreneur. It means a person who starts a new business, especially one which involves some risk. ऐसा बंदा जो जॉब करने की बजाय अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ख़ास तौर पे बिल्कुल नए आइडिया के साथ जिसमें थोड़ा सा रिस्क हो. एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ फेलिंग कैन नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर. अगला वर्ड है हाइजीनिक, मतलब साफ. लिखिए फिर स्पेलिंग इसके. हाइजीनिक. हाइजीनिक. And here's the correct spelling of hygienic. हाइजीनिक का मतलब होता है क्लीन, स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिजीज. साफ सुथरा. ये वर्ड आया है हाइजीन से, मतलब साफ सफाई. हाइजीनिक का एंटोनिम है अनहाइजीनिक, जिसका मतलब है गंदा, मैला कुचैला. एग्जाम्पल सेंटेंस, फूड मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन हाइजीनिक कंडीशंस. द नेक्स्ट वर्ड इज परस्यू. इसका मतलब होता है करना या पीछा करना. परस्यू. Pursue. And here's the correct way to write this word. याद रखें, pursue में PUR आता है, PER नहीं. Pursue का मतलब होता है to do something,
usually over a long period of time, like an activity, hobby, or career. For example, she wants to pursue a career in acting. वैसे pursue का मतलब चेज करना भी होता है, पीछा करना, और इसका नाउन होता है pursuit. नंबर 6, persuade. इसका मतलब होता है मना लेना या राजी कर लेना. Persuade. Persuade. Okay, here's the word for you. याद रखें, परसुएट में PER आता है, परस्यू में PUR और परसुएट में PER. परसुएट का मतलब है टू मेक समवन डू और बिलीव समथिंग बाय गिविंग देम अ गुड रीजन टू डू सो. किसी को कुछ करने के लिए मना लेना, राजी कर लेना. द सेल्समैन परसुएटेड मी टू बाय द प्रोडक्ट. जो दूसरों को परसुएट कर पाए, मतलब अपनी बात मनवा पाए, उस बंदे को बोलते हैं परसुएसिव. और उसकी क्वालिटी होती है परसुएसिवनेस. और सेल्समैन में तो ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए. वर्ड नंबर 7 इज कॉन्शियस, मतलब कि होश में. कॉन्शियस. कॉन्शियस. बहुत से लोग इस वर्ड के स्पेलिंग गलत इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो इसे मिसप्रोनाउंस करते हैं. ये वर्ड कॉन्शियस नहीं है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कॉन्शियस. इसमें आई साइलेंट है. कॉन्शियस. इसका मतलब होता है अवेक एंड अवेयर ऑफ वंस सराउंडिंग्स, होश में. एग्जाम्पल, ही वॉज बेयरली कॉन्शियस व्हेन वी गॉट हिम टू द हॉस्पिटल. नंबर 8 इज कॉन्शियंस, इंसान का ज़मीर. कॉन्शियंस. कॉन्शियंस. एंड हियर इज द वर्ड फॉर यू. इस वर्ड के स्पेलिंग बहुत सिंपल है. अगर आप ये याद रखें कि पहले CON लिखना है और उसके बाद साइंस के स्पेलिंग लिखने हैं. कॉन्शियंस का मतलब है अ पर्सन्स मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. अंतर आत्मा की आवाज़ जो हमें ये बताती है कि क्या गलत है और क्या सही है, मतलब कि ज़मीर. एग्जाम्पल, माई कॉन्शियंस डजंट अलाउ मी टू चीट समबडी. मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी के साथ धोखा करूं. वर्ड नंबर 9 इज पास टाइम, कोई एक्टिविटी जो फ्री टाइम में की जाती है. पास टाइम. पास टाइम. हियर इट इज. याद रखें कि इस वर्ड में PASS नहीं बल्कि PAS आता है. मतलब पास में से एक S को हटा के TIME आगे जोड़ना होता है. तो पास टाइम इज एन एक्टिविटी दैट यू डू इन योर फ्री टाइम फॉर प्लेजर, अ हॉबी. टाइम पास करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है, जैसे कि वॉचिंग TV, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग, पेंटिंग, डांसिंग वगैरह. एग्जाम्पल, सर्फिंग द इंटरनेट इज माई फेवरेट पास टाइम. नंबर 10 इज मिसस्पेल, किसी वर्ड के गलत स्पेलिंग लिखना. मिसस्पेल. मिसस्पेल. Here's the word for you. याद रखें कि इस वर्ड में एक S तो मिस का और दूसरा S स्पेल का यूज करना है, मतलब इसमें डबल S यूज किया जाता है. और मिस स्पेल का मतलब है टू स्पेल अ वर्ड रॉन्गली, गलत स्पेलिंग लिखना. एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर द स्पेलिंग रूल I before E except after C, then you won't misspell the word peace. अगला वर्ड है जिराफ,
बहुत लंबी गर्दन वाला जानवर, जिराफ, जिराफ। ओके, डिड यू स्पेल इट करेक्टली? याद रखें, जिराफ में सिंगल आर और डबल एफ यूज किया जाता है। जिराफ इज अ लार्ज अफ्रीकन एनिमल विद अ लॉन्ग नेक। एग्जाम्पल, वी सॉ अ जिराफ इन द जू। नंबर 12 इज बुके, फूलों का गुलदस्ता, बुके, बुके। Okay, here's the correct way to write this word. इस वर्ड में टी साइलेंट है, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ये वर्ड फ्रेंच ओरिजिन का है और फ्रेंच वर्ड्स में ज़्यादातर लास्ट में आने वाले टी, डी, एस और टी लेटर्स को साइलेंट रखा जाता है, बोलते समय उनको बोला नहीं जाता। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है बुके या बुकेई। इसका मतलब होता है अ वेल अरेंज्ड बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। और एग्जाम्पल सेंटेंस है कि ही गिफ्टेड मी अ बुके ऑफ रोजेस ऑन माई बर्थडे। वर्ड नंबर 13 इज टफ। द वर्ड इज यॉनरा, यॉनरा। इसका मतलब होता है प्रकार या किस्म, यॉनरा, यॉनरा। ओके, डिड यू गेट इट राइट? कुछ लोग इस वर्ड को यॉनर या जॉनर या जॉनरा भी कहते हैं, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है यॉनरा। इट मीन्स अ स्टाइल और कैटेगरी ऑफ आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर, प्रकार, किस्म। जैसे कि म्यूजिक में यॉनराज होते हैं पॉप, रॉक, जैज, रैप, क्लासिकल वगैरह। और मूवीज़ के यॉनराज होते हैं एक्शन, रोमांस, हॉरर वगैरह। एग्जाम्पल, व्हेन इट कम्स टू बुक्स, साइंस फिक्शन इज माई फेवरेट यॉनरा। नंबर 14 है सुवनियर। इसका मतलब होता है निशानी, सुवनियर, सुवनियर, सुवनियर। Here's the word for you. सुवनियर का मतलब है समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर, निशानी, यादगार। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्टिल गॉट ऑल द सुवनियर्स फ्रॉम माई यूरोप ट्रिप। वैसे सुवनियर कॉलेज में भी छपता है, जिसमें पास आउट करने वाले सारे बैच के स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़ और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। वो भी एक तरह की निशानी ही होती है। नेक्स्ट इज मोमेंटो। इसका मतलब भी निशानी होता है, मोमेंटो, मोमेंटो। ओके, हियर्स द वर्ड फॉर यू। याद रखें कि मोमेंटो का मोमेंट से कोई लिंक नहीं है, बल्कि ये उसी रूट से आया है, लैटिन की उस रूट से आया है जिससे वर्ड रिमेंबर आया है। सो ये MO से नहीं बल्कि ME से शुरू होता है। मोमेंटो का मतलब है एन ऑब्जेक्ट केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन और इवेंट, मतलब की निशानी। एग्जाम्पल, दे गेव हिम अ वॉच एज अ मोमेंटो ऑफ हिज टाइम विद द कंपनी। Okay, the next one is a killer. You will be a very smart person if you can get this right. And the word is Portuguese. पोर्चुगल का रहने वाला, पोर्चुगीज, पोर्चुगीज। Okay, did you get it right?
इस वर्ड के स्पेलिंग बहुत ट्रिकी हैं। ये जो जी के बाद यू आता है, ये लोग नहीं लिखते हैं और स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। तो पोर्चुगीज़ का मतलब बिलोंगिंग टू पोर्चुगल, जैसे इटली में रहने वाला इटालियन, फ्रांस में रहने वाला फ्रेंच, मेक्सिको में रहने वाला मैक्सिकन, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला ऑस्ट्रेलियन, या कैंगरू भी कहते हैं क्योंकि उनका वो नेशनल एनिमल है। न्यूजीलैंड में रहने वाला न्यूजीलैंडर या किवी उनका नेशनल फ्रूट है। सऊदी अरेबिया में रहने वाला अरब, और टर्की में रहने वाला टर्किश। इन सारे वर्ड्स को डेमोनिम्स कहा जाता है, और इस तरह के वर्ड्स कंट्रीज के अलावा सिटी से भी बनते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क में रहने वाला न्यूयॉर्कर, लॉस एंजलिस में रहने वाला एंजलिनो, लंदन में रहने वाला लंडनर, दिल्ली में रहने वाला दिल्लीइट, और मुंबई में रहने वाला मुंबईकर। लेट्स मूव ऑन टू वर्ड नंबर 17 एंड द वर्ड इज साइकोलॉजिकल, मतलब कि मानसिक। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। याद रखें कि इस वर्ड में पी साइलेंट होता है। पहले लिखना है साइको, PSYCHO, और उसके बाद लिखना है लॉजिकल। इट मीन्स रिलेटेड टू द मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ अ पर्सन, मानसिक। एग्जाम्पल, ही हैज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। वर्ड नंबर 18 इज ऑटम। पतझड़ के मौसम को बोलते हैं ऑटम, ऑटम। एंड हियर इज द करेक्ट वे टू राइट दिस वर्ड। याद रखें कि ऑटम में एन साइलेंट होता है। ऑटम इज द सीजन बिटवीन समर एंड विंटर, lasting from September to November. Example, we have planned a trip for autumn this year. Word number 19 है aggressive, आक्रामक, लड़ाका। aggressive, aggressive. And here's a word for you. Remember the double G and the double S in this word. Aggressive means angry and wanting to fight or argue, likely to attack. Akramak. Example, our dog can be quite aggressive at times. Number 20 is bizarre. इसका मतलब होता है बहुत अजीब। bizarre, bizarre. ओके, चेक करें आपने सही लिखा या नहीं लिखा। इस वर्ड की साउंड से लगता है कि Z डबल होना चाहिए, पर इसमें असल में Z सिंगल है और R डबल है। bizarre मीन्स वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, बहुत ज़्यादा अजीब। Example, he told us the most bizarre story. Number 21 is cemetery. कब्रिस्तान को बोलते हैं जहां मरने के बाद लोगों को दफन किया जाता है। cemetery, cemetery. And here's the word for you. इस वर्ड को असल में दो तरह से बोला जाता है। ब्रिटिश इसको बोलते हैं cemetery, जैसे मैंने बोला, और अमेरिकन्स कहते हैं cemetery, cemetery, cemetery और cemetery। याद रखें कि cemetery में सभी जगह पर ई आता है 3 बार, CEMETE, और एंड में आता है RY। It means a burial ground, graveyard. Example,
My grandfather is buried in this cemetery. Number 22 is chauffeur, मतलब कि ड्राइवर. Chauffeur. Chauffeur. Okay, here's the word. You have to remember the double F and the EUR in this word. Chauffeur is a person employed to drive a motor vehicle. एक यूनिफॉर्म्ड और ट्रेन्ड ड्राइवर को शॉफर बोलते हैं. जैसे बढ़िया कुक को शेफ कहते हैं, इसी तरह से वेल ट्रेन्ड ड्राइवर को शॉफर कहा जाता है. और एक बड़ा मशहूर एक्सप्रेशन है शॉफर ड्रिवन कार. ही ऑलवेज मूव्स अराउंड इन अ शॉफर ड्रिवन कार. कोई बहुत अमीर आदमी होगा तो वो अफोर्ड कर सकेगा कि शॉफर ड्रिवन कार में इधर उधर जाए. एग्जाम्पल, ही टोल्ड हिज शॉफर टू टेक हिम होम. द नेक्स्ट वर्ड इज कॉलीग. जो आपके साथ ऑफिस वगैरह में काम करता हो. कॉलीग. कॉलीग. And here's the correct spelling of colleague. इसका मतलब होता है co-worker. Example, all my colleagues are very helpful. और अगला वर्ड है committee. 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 Did you get it right? याद रखें कि कमिटी में डबल M, डबल T और डबल E यूज किया जाता है. Committee means a group of people who meet to make decisions or plans. Example, the school committee meets twice a month. The next word is dilemma. Dilemma. दुविधा इसका मतलब होता है dilemma. Okay, this is the correct spelling of this word. Dilemma is a difficult situation in which you have to choose between two or more alternatives. दुविधा एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने दो चीज़ों में से एक चुननी है और फैसला करना बड़ा मुश्किल है. For example, I am in a dilemma about whether to change my job or not. Number 26 is embarrass. इसका मतलब होता है शर्मिंदा करना. Embarrass. Embarrass. Okay, did you get it right? याद रखें कि embarrass में डबल R और डबल S यूज होता है. इसका मतलब होता है to cause someone to feel awkward, ashamed or self-conscious. शर्मिंदा करना किसी को. Please don't embarrass me by thanking me again and again. इससे और भी वर्ड्स बनते हैं embarrassing, शर्मिंदा करने वाला इंसिडेंट, और embarrassment मतलब शर्मिंदगी. 27 is harass, किसी को परेशान करना. Harass. Harass. Okay, here's the word. याद रखें कि harass में सिंगल R और डबल S यूज किया जाता है. embarrass में डबल R और डबल S, लेकिन harass में सिंगल R और डबल S. harass का मतलब होता है किसी को annoy करना, अपसेट करना. intimidate करना मतलब कि डराना, किसी को तंग करना, परेशान करना. Example, his boss has been harassing him for months. अगला वर्ड है एब्सेंस. उपस्थित ना होना. एब्सेंस. एब्सेंस. Here is the word for you. याद रखें कि इस वर्ड में पहले S आता है और फिर C आता है. Absence means
the state of not being present. Example, he gave a valid reason for his absence from the meeting. अगला वर्ड है फॉरेन, मतलब कि विदेशी. ये तो सारों को आता है. फॉरेन, फॉरेन. ओके, ये वर्ड के स्पेलिंग तो आपने ठीक लिखे होंगे. इसमें ई आई का ध्यान रखना होता है. फॉरेन का मतलब ऑफ और फ्रॉम अनदर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस. And the last word is immediately. तुरंत. Immediately. Immediately. Here's the word for you. Remember that this word starts with I-double-M-E, and then you'll not make a mistake in its spelling. It means instantly, उसी समय, या तुरंत. Example, I called him immediately on hearing the news. Okay, that's the end of this test cum lesson. Do write your score out of 30 in the comments below. I'll be back soon with another lesson on spelling mistakes in English.